Hello everyone. So last time we completed about external mouthpiece and derived its expression and also solved a numerical based on that. Today we are going to start our next mouthpiece, which is the convergent divergent mouthpiece. Okay, which comes under what? Which comes under the classification based on shape. I am discussing here only important mouthpieces which is important from your exam point of view. So what is this convergent divergent mouthpiece? If a mouthpiece converges up to vena contracta and then diverges to that type of mouthpiece, it is called as convergent divergent mouthpiece. So basically what he is talking about, that in a tank, when we are dealing with, that is this tank, we fitted a pipe like this in mouthpieces, but now happens we provide pipe like this. See here in this. Okay. Wait, it is not clear. I will show you. See here, we provide a pipe like this. But first it is converging and then it is diverging, so that the fluid will not be able to take the shape of vena contracta. Its area will not contract. We provide the shape of the same pipe. We provide pipe of the same shape as vena contracta, so that there will be no losses. So similarly, we consider two sections here. At one section which is CC, where the area of the pipe is minimum, and at section 1 where it is maximum. Okay, so apply Bernoulli's equations, okay, to the free surface of the tank. Okay, and the second is section CC. We are taking two sections here, to the free surface and section CC. So apply Bernoulli's equation. What we will get? See here, we will get P upon rho g plus V2 square upon 2g plus Z plus PC upon rho g plus Vc square upon 2g plus Zc. This is the vena contracta side. Now we are taking datum here at the center of the orifice. So in previous cases we are considering the datum at the bottom of the tank, but now here we are considering the datum at the center of the orifice here. Okay, so pressure head at A. Okay, at the we are considering two sections, that is one at free surface and the other as C here, CC section. So pressure head P means P upon rho g at free surface is what? Here it is atmospheric pressure only, HA. Okay, and at vena contracta it is HC. What is this HC? Wait, I will show you. See, HC is this height, this height. Okay, this is HC. Now we considering the datum at the center of this mouthpiece. So what happened? V velocity inside the tank is 0, and from the datum the height of this free surface is h, and from the datum this is the datum, and the height of ZC is 0. Because that we are considering that this center of this mouthpiece as datum. So here will be, it is 0. Putting all these values in this Bernoulli's equation, we obtain the formula as Vc is equal to under root 2g HA plus H minus HC. Now first we applying the Bernoulli's equation to the free surface and the section CC. Now again applies the Bernoulli's equation on section CC and section 1 1. So apply Bernoulli's equation again and you obtain this PC upon rho g plus Vc square upon 2g plus Zc plus P1 upon rho g. This is section 1. In first case we are considering section at free surface and vena contracta, or you can say at section CC. In this case we are applying Bernoulli's equation at CC and 1 1. Okay, so apply the same Bernoulli's equation. Now we are considering the datum as center of the mouthpiece. So ZC, that is section C from
both the section CC and section 11 are the same height from the datum, so they get cancelled. Means set C is equal to Z1 and they get cancelled. P1 upon rho G is what? P1 is equal to P1 is under the atmospheric pressure. So here it will be considering atmospheric pressure. See from the diagram I will show you. Here see at section 11 what is there is no head above it, means here is no water above it, it is only atmospheric pressure. So we are considering HA, that is head due to atmospheric pressure. Okay, clear? So put all these values in this Bernoulli's equation. After putting the values in this Bernoulli's equation, what happened? Now see, after solving this, wait, see from here we get this equation, that is HA is equal to, after putting these values, we obtain this equation which is equal to HA plus H equal to HC plus V C square upon 2G. Now we obtain one equation here and this equation. Now we obtain this equation. See, this term here and this term here are same. So we equate these two equations. After equating these two equations, what we will obtain? We will obtain this equation, which is HA plus V1 square upon 2G is equal to H plus HA. And from here we obtain the value of V1 as under root 2GH. Now apply continuity equation. Continuity equation is ACBC और A1V1 दोनों सेक्शंस पे लगा लिया हमने, वैना कंडक्टर के सेक्शन पे भी और सेक्शन 1 पे भी। और वहाँ से हमने ए वाली टर्म्स अलग कर दी, A1 अपॉन AC इज इक्वल टू VC अपॉन V1। ठीक है, अब VC की टर्म हमने पहले निकाली हुई है और V1 की हमने अभी निकाल ली है। तो वहाँ से जब हम वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे यहाँ पे, तो फाइनली हमें A1 अपॉन AC की वैल्यू मिलेगी ये हमें वैल्यू मिल जाएगी। ठीक है, तो डिस्चार्ज किसके इक्वल आ जाएगा वैना कंट्रैक्टा में? डिस्चार्ज इज इक्वल टू एरिया एट वैना कंट्रैक्टा इनटू थ्योरेटिकल वेलोसिटी, दैट इज इक्वल टू अंडर रूट 2GH। ठीक है, तो यहाँ से हमें डिस्चार्ज मिल जाएगा। तो AC क्या यहाँ पे? एरिया ऑफ वैना कंट्रैक्टा। ओके, सो नेक्स्ट टॉपिक पे आ जाते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है फ्लो थ्रू इंटरनल। पहले अभी तक हम पढ़ रहे थे इसके बारे में, एक्सटर्नल्स के बारे में, जब जो माउथ पीस होगी वो टैंक के एक्सटर्नली कनेक्ट होगी। अब हम पढ़ेंगे फ्लो थ्रू इंटरनल और रीएंट्रेंट, और जिसको हम बोलते हैं बोर्डास माउथ पीस। अब इसमें मैंने आपको पहले बताया था कि इंटरनल में क्या होता है। इंटरनल में हम इंटरनली फिट कर देते हैं पाइप को, ना कि एक्सटर्नली फिट करते हैं। अब इसमें भी दो केसेस आ जाते हैं, एक रनिंग, जो रनिंग फ्री और रनिंग फुल का केस था वो इसी में इंटरनल्स में ही आता है। अब इसमें क्या होता है, देखो, अगर जो हमारे पास जो हमने लेंथ प्रोवाइड की हुई है टैंक के अंदर की तरफ, जितनी हमने लेंथ प्रोवाइड की है वो किसके इक्वल हो? जितना उसका डाया हो। अगर वो दोनों इक्वल हैं तो उस केस में हम उसको बोलेंगे, उस केस में क्या होगा, जो भी लिक्विड फ्लो करेगा यहाँ से वो इसकी पाइप की किसी भी वॉल को टच नहीं करेगा, सिंपली फ्लो करेगा। ठीक है, पाइप की वॉल्स को टच नहीं करेगा। ओके, मैं आपको एक बार फिर से बता देता हूँ। देखो, सपोज कि हमारे पास ये टैंक है। ओके, तो इंटरनली हमने यहाँ फिट किया हुआ है। तो अब क्या होगा, वाटर जो फ्लो हो रहा होगा वो सिर्फ यहाँ पे फ्लो करेगा, इसकी पाइप की जो सरफेस है इसको बिल्कुल टच नहीं करेगा, सिंपली यहाँ से फ्लो के वो बाहर गिर जाएगा। तो उस केस में हम उसको बोलेंगे रनिंग फ्री। अब सिमिलरली दूसरा केस आएगा, दूसरे केस में क्या होगा कि जब वो फ्लो करेगा तो पहले फर्स्टली वो शेप लेगा वैना कंट्रैक्टा की। सेकंड केस आएगा कब? सेकंड केस तब आएगा जब जो उसकी लेंथ होगी, जो हमने लेंथ प्रोवाइड की है वो उसकी 3 टाइम्स होगी डायमीटर की, जितना डाया उसका 3 टाइम्स उसकी लेंथ होगी। तो उस केस में हमें ये वाला केस आएगा। तो इस केस में क्या होगा, पहले वो कंट्रैक्ट होगा, उसके बाद सडनली एक्सपैंड होकर पाइप की शेप ले लेगा। ठीक है, तो उस केस को हम बोलेंगे रनिंग फुल। ठीक है, तो ये याद रखना है कि दो केसेस हमारे पास आते हैं इसके अंदर, एक रनिंग फ्री का इंटरनल में और एक रनिंग फुल का।
तो इसके अलग अलग नाम्स हैं, जहाँ पेपर्स में आपको ऐसे पूछ सकते हैं कि बताओ बोर्डास माउथ पीस को कैसे, उसका फ्लो कैसे डिटरमाइन करेंगे, या री एंट्रेंट माउथ पीस का कैसे करेंगे, या फिर इंटरनल का। ठीक है, तो इंटरनल के अंदर ये दो केस आ गए, रनिंग फ्री और रनिंग फुल। चलो इसका आगे देखते हैं हम। चलो अब इसको ध्यान से देखना थोड़ा। सबसे पहले आ जाएगा बोर्डास माउथ पीस रनिंग फ्री। अब मैंने जैसे बताया था कि इंटरनल में इंटरनली कनेक्ट होता है। अब मैं बात कर रहा हूँ फ्री की, मतलब इसका डाया और लेंथ सेम है, तो इसलिए ये फ्री है। तो जो फ्लूइड फ्लो हो रहा होगा वो किसी पाइप की वॉल को बिल्कुल टच नहीं करेगा और सिंपली फ्लो करेगा वो। ठीक है, तो मान लेते हैं कि जो ये सेंटर का जो माउथ पीस का सेंटर है, इसकी हाइट उस वहाँ से ऊपर फ्री सरफेस तक हाइट h है, जिसको हम हेड भी बोल सकते हैं। ए जो है वो माउथ पीस का एरिया है, और ए सी जो है वो कंट्रैक्टेड जेट का एरिया है। कंट्रैक्टेड जेट मतलब यहाँ पे जब ये एंटर होगा तो कंट्रैक्ट तो होगा ही है, ठीक है, थोड़ा बहुत कंट्रैक्ट तो होगा ही, तो उसका एरिया जो है वो ए सी है। ठीक है, उसके बाद हमारे पास वी सी आ जाएगा। वी सी क्या हो गया, वेलोसिटी थ्रू मोर, यहाँ से जो फ्लो हो रहा है उसकी वेलोसिटी कितनी है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करेंगे, क्या होगा कि इसमें जो फ्लो हो रहा है पाइप में वो किसकी वजह से हो रहा है, जो इस जो फ्लूइड पड़ा हुआ है ऊपर, इसकी वजह से जो प्रेशर लग रहा है यहाँ पे, उसकी वजह से फ्लो हो पा रहा है, अंदर की तरफ जा पा रहा है। तो कितनी यहाँ पे प्रेशर, टोटल प्रेशर कितना लग रहा है यहाँ पे, या टोटल प्रेशर कह सकते हैं या फोर्स कह सकते हैं। तो इसमें वही हाइड्रोस्टैटिक लॉ आ जाएगा, टोटल प्रेशर। सिंपली प्रेशर टोटल प्रेशर और फोर्स किसके ऊपर होती है, रो जी एच इंटू ए। ठीक है, फोर्स किसकी होती है, प्रेशर इंटू एरिया। तो प्रेशर क्या होता है, रो जी एच, मैंने आपको बताया था हाइड्रोस्टैटिक लॉ में, रो जी एच प्रेशर आ गया, और ये आ गया एरिया, एरिया ऑफ ओरिफिस। ठीक है, तो हमारे पास टोटल प्रेशर फोर्स इसमें जो लग रही है, जो इसके एंट्रेंस पे यहाँ पे जहाँ से एंटर कर रहा है फ्लूइड, वो हमें पता लग गई। उसके बाद क्या है, ये जो एच इसमें रो जी एच ए में एच ए वाला ये वाला डिस्टेंस था। अब लगाते हैं हम न्यूटन सेकंड लॉ मोशन। न्यूटन सेकंड लॉ मोशन क्या बोलता है कि नेट फोर्स जो होती है वो किसकी इक्वल होती है, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम के। ठीक है, क्या बोलता है न्यूटन सेकंड लॉ, नेट फोर्स इज इक्वल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। ठीक है, तो सबसे पहले निकाल लेते हैं मास ऑफ, जो लिक्विड कितना फ्लो कर रहा है उसका मास निकाल लेते हैं। कैसे निकालेंगे, देखो यहाँ पे सबसे पहले निकालेंगे मास ऑफ लिक्विड फ्लोइंग पर सेकेंड। अब मास किसके इक्वल होता है, डेंसिटी किसके इक्वल होती है, मास अपॉन वॉल्यूम, यही होती है। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, मास किसके इक्वल आ जाएगा, डेंसिटी इनटू वॉल्यूम। अब वॉल्यूम किसके इक्वल होती है, मैंने काफ़ी बार बताया है, वॉल्यूम होती है अगर हम किसी एरिया को मल्टीप्लाई कर देंगे डिस्प्लेसमेंट से। ठीक है, तो हमारे पास वॉल्यूम हो जाएगी। डिस्प्लेसमेंट का यूनिट्स क्या होते हैं, मीटर्स में होते हैं, एरिया के मीटर स्क्वायर में, तो यहाँ से वॉल्यूम बन जाएगी। अब हमें बोला है फ्लो ऑफ फ्लोइंग लिक्विड पर सेकंड, तो पर सेकंड बोला है तो नीचे टाइम भी आएगा। ठीक है, तो हमारे पास क्या बन जाएगी इक्वेशन, रो इंटू ए सी, दैट इज एरिया एट वन कंट्रैक्टर, इंटू डिस्प्लेसमेंट इंटू अपॉन टाइम। तो डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम को हम वेलोसिटी भी लिख सकते हैं, वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। वेलोसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी होती है। ठीक है, तो यहाँ से हमारे पास मास आ जाएगा। अब देखो, इनिशियली जब लिक्विड टैंक में था तब उसकी वेलोसिटी क्या थी, तब रेस्ट पे था वो, और फाइनल वेलोसिटी क्या होगी, जब वाइनर कंट्रैक्टर पे पहुंचा उसकी वीसी होगी। ठीक है, तो अब न्यूटन सेकंड लॉ में क्या बोला था, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम किसके इक्वल होता है। तो रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम किसके इक्वल होता है, सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए मोमेंटम किसके इक्वल होता है। मोमेंटम किसके इक्वल होता है, मोमेंटम होता है मास इनटू वेलोसिटी, याद रखना है ये, मोमेंटम इज इक्वल टू मास इनटू वेलोसिटी। तो मास ऑफ फ्लोइंग फ्लूइड पर सेकंड हमने निकाल लिया है यहाँ पहले पे, तो सिंपली ये मास को मल्टीप्लाई कर देंगे वेलोसिटी से। वेलोसिटी कैसे डिटरमाइन करेंगे, इनिशियल माइनस फाइनल माइनस इनिशियल, फाइनल क्या थी वीसी और इनिशियल क्या है 0। तो यहाँ से हमें रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम मिल जाएगा, क्योंकि मास हमने पहले से निकाल रखा है, तो सिंपली वैल्यू पुट करनी है, और फाइनल वेलोसिटी वीसी है और इनिशियल वेलोसिटी 0 है। इनिशियल वेलोसिटी 0 क्यों है, क्योंकि स्टार्टिंग में टैंक में जो वेलोसिटी होती है वो ऑलमोस्ट 0 नेग्लिजिबल होती है, स्टिल कंडीशन में होता है। तो यहाँ से आ गया हमारे पास ये रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। अब न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन ने क्या बोला था कि नेट फोर्स जो होती है, नेट फोर्स हमने सबसे पहले निकाल दी, तो टोटल प्रेशर निकाला था। ठीक है, नेट फोर्स किसकी इक्वल होती है, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम के। तो इन दोनों को जब हम इन दोनों इक्वेशंस को इक्वेट कर देंगे तो हमें क्या मिलेगा, हमें मिल जाएगी ये टर्म, रो जी एच इज इक्वल टू रो ए सी वी सी स्क्वायर। अब लगा दो बर्नौलीज इक्वेशन अगेन फिर से,
अब किस पे लगानी है, फ्री सरफेस ऑफ लिक्विड पे और सेक्शन 1 पे। ठीक है, दोनों पे लगा लो अब बर्नौलीज इक्वेशन। अब तो आप अभी तक तो बर्नौलीज इक्वेशन याद होनी चाहिए सबको, कैसे लगाएंगे सेक्शंस पे, तो ये आ जाएगी बर्नौलीज इक्वेशन। अब सिमिलरली देखो, जब हमने बर्नौलीज इक्वेशन लगाई तो उसके बाद हमने क्या करना है, जो डाटम लेना है हमने अगेन कहाँ लेना है, जो सेंटर होगा किसका, माउथ पीस का जो सेंटर होगा वहाँ से हमने डाटम लेना है। ठीक है, तो देखो अब पी अपॉन रो जी, अब दोनों सेक्शंस पे देखो हमने सेक्शंस कौन सी की थी, एक फ्री सरफेस कंसीडर की थी। फ्री सरफेस पे भी हमारा कौन सा प्रेशर लग रहा है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर लग रहा है। और जो हमारा सेक्शन 1 है वो भी ओपन में है, तो वहाँ भी लगेगा सिर्फ एटमॉस्फेरिक प्रेशर, तो वहाँ हम उसको ले लेते हैं 0। ठीक है, तो वहाँ पे ले लिया हमने उसको 0। अब आ जाती है डाटम से डिस्टेंस की बात। फ्री सरफेस का डाटम हमने कहाँ कंसीडर किया था, माउथ पीस के सेंटर से। तो माउथ पीस से सेंटर से लेके फ्री सरफेस का डिस्टेंस कितना है, h डिस्टेंस है, तो ये आ जाएगा z, h, दैट इज इक्वल टू h। और फ्री सर्फ और दूसरी क्या ली थी हमने सेक्शन 1 उसका डिस्टेंस कहाँ है, उसका डिस्टेंस सेंटर पे ही है, सेंटर हमने डाटम कंसीडर किया है सेंटर पे, तो वो भी सेंटर पे ही है सेक्शन 1 तो वो हो जाएगी 0। ठीक है, बची बात V1 और VC की। देखो V1 की और VC सेम होगी, क्योंकि फर्स्टली तो देखो पहले जो टैंक के अंदर वेलोसिटी होगी वो 0 होगी, क्योंकि फ्लूइड जो होगा वो रेस्ट कंडीशन में होता है, वहाँ पे ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल वेलोसिटी होती है, तो वो तो 0 हो जाएगी। और V1 तो वेलोसिटी हम किसको मान रहे हैं, जो सेक्शन 1 से है, और वरना कंट्रैक्शन भी वहीं पे हो रही है, कंट्रैक्टेड वॉल्यूम में निकल रही है वहाँ से, तो इसलिए वहाँ पे ये दोनों वेलोसिटीज इक्वल हो जाएंगी। तो इन सभी वैल्यूज़ को जब हम पुट करेंगे फाइनली क्वेश्चन में, तो हमें वेलोसिटी एट वन कंट्रैक्टर मिल जाएगी √2gh। अब वेलोसिटी एट वन कंट्रैक्टर मिल गई हमको, तो उसके बाद आप डिस्चार्ज निकालना। चलो पहले वेलोसिटी हमें मिल गई, ठीक है, तो अब हम क्या करते हैं, वेलोसिटी जो हमें मिल गई इसके बाद हम क्या करते हैं, वेट 1 मिनट, इसके बाद जो हमने वैल्यूज़ निकाली थी पीछे, कौन सी वैल्यूज़ निकाली थी, ये वाली वैल्यूज़ रो जी ए एच और रो ए सी। अब वेलोसिटी वी सी निकल गई, तो वो वेलोसिटी हम यहाँ पुट कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ हम जब वेलोसिटी पुट कर देंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, ये हम यहाँ पे क्यों पुट कर रहे हैं, हमने सीधा डिस्चार्ज क्यों नहीं निकाली है, क्योंकि हमें सी डी की वैल्यू निकालनी थी, इसलिए हम यहाँ पे पहले पुट कर रहे हैं इसको। तो जब हम यहाँ वी सी की वैल्यू पुट कर देंगे, देखो यहाँ पे जब हम यहाँ वी सी की वैल्यू पुट कर देंगे, ठीक है, तो क्या होगा, वी सी की वैल्यू पुट करेंगे तो ये आ जाएगा √, ये 2gh का स्क्वायर था, तो ये रूट कैंसिल हो जाएगा, तो वहाँ से हमें AC अपॉन ए की वैल्यू निकल जाएगी। AC अपॉन ए क्या होता है, कोफिशिएंट ऑफ कंट्रैक्शन। ठीक है, कोफिशिएंट ऑफ कंट्रैक्शन की वैल्यू मिल गई हमको। दो चीज़ें याद रखनी है, कोफिशिएंट ऑफ डिस्चार्ज किसके इक्वल होता है, CC इंटू CV। ठीक है, कोफिशिएंट ऑफ कंट्रैक्शन की वैल्यू मिल गई। अब कोफिशिएंट ऑफ वेलोसिटी क्या होगी, कोफिशिएंट ऑफ वेलोसिटी होगी 1, क्योंकि वहाँ पे कोई भी हेड लॉस नहीं हो रहा है, क्योंकि पाइप के साथ लिक्विड टच ही नहीं कर रहा है, वो बिल्कुल फ्री फ्लो हो रहा है, तो वहाँ पे लॉसेज होंगे, 0 होंगे, तो वहाँ पे उस केस में उसकी वैल्यू आ जाएगी 1। तो वैल्यू जब हम पुट करेंगे यहाँ पे फाइनली, तो हमें सी डी की वैल्यू मिल जाएगी CV। तो डिस्चार्ज के फॉर्मेट में हम CD यूज़ करते हैं, क्यों यूज़ करते हैं, क्योंकि हमें रियल फ्लूइड्स के लिए निकालनी होती है वैल्यूज़। तो जब हम रियल फ्लूइड्स के लिए निकालेंगे तो CD की वैल्यू हमने ऑलरेडी ऑब्टेन की हुई है 0.5, एरिया में पता है CA, और उसके बाद थ्योरेटिकल वेलोसिटी भी पता है √2gh। तो यहाँ से हम डिस्चार्जेस का निकाल सकते हैं। ये किसका केस आ गया हमारे पास, रनिंग फ्री का, जब जो फ्लूइड फ्लो हो रहा होगा वो पाइप की टच नहीं करेगा, जब क्योंकि जब पाइप का डाया और उसकी लेंथ सेम होगी तो उस केस में क्या होता है, फ्लूइड फ्री फ्लो होता है, बिल्कुल भी पाइप की साइड्स को टच नहीं करता है। ठीक है, चलो अब नेक्स्ट टॉपिक पे आ जाते हैं। जैसे हमने रनिंग फुल किया था, तो अब आ जाएगा रनिंग फ्री किया था, अब आ जाएगा रनिंग फुल। तो रनिंग फुल में क्या होगा, मैं बता चुका हूँ आपको कि फर्स्टली वो कंट्रैक्ट होगा, यहाँ पे कंट्रैक्ट होगा, और उसके बाद वो दोबारा एक्सपैंड होकर पाइप की शेप ले लेगा। तो ये जनरली किस केस में होता है, जब पाइप का डाया जो होगा वो उसकी लेंथ से, जितना पाइप का डाया होगा उसकी लेंथ जो होगी वो 3 टाइम्स उससे ज़्यादा होगी, तो उस केस में हम रनिंग फुल कंसिडर करते हैं। तो इस केस में क्या होगा, पाइप की कंटेक्ट में आ रहा है तो हेड लॉसेस, अब यहाँ पे लॉसेस का केस आ जाएगा। अब मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था, जो हमने एक सडन एक्सपेंशन का लॉस लिया था, HL लिया था वहाँ पे, ठीक है, तो वहाँ पे HL की टर्म मैंने याद रखने को बोला था, क्योंकि इस केस में देखो सडनली कंट्रैक्ट हो रही है, उसके बाद सडनली एक्सपैंड हो रही है, यहाँ पे कंट्रैक्ट होके एक्सपैंड हो रही है, तो यहाँ पे कुछ लॉस होगा, तो उस लॉस को भी हमें कंसिडर करना पड़ेगा बर्नौलीज इक्वेशन में, तो इसलिए इस चीज़ का ध्यान रखना है आपने।
तो वही हेड लॉस हमने कंसीडर कर लिया एच एल यहाँ से, और कंटिन्यूटी इक्वेशन लगाएंगे दोबारा। तो कंटिन्यूटी इक्वेशन अब काफ़ी बार याद हो चुकी होगी आपको, एरिया इंटू वेलोसिटी ए सी बी सी, इस पे लगा रहे हैं एट कंट्रैक्शन के एरिया पे। और सेकंड कहाँ एरिया, जो सेकंड सेक्शन वो हमने कहाँ कंसीडर की है, वो यहाँ पे कंसीडर की है। एक सेक्शन हमारे पास ये आ रही है सी सी वाली, और एक सेक्शन ये आ रही है 1 1। तो यहाँ पे हमने कंटिन्यूटी इक्वेशन लगाई है। तो कंटिन्यूटी इक्वेशन जब लगाएंगे हमारे पास क्या आ जाएगा, यहाँ से हमारे पास बी सी की वैल्यू आ जाएगी। ए सी अपॉन ए वन अभी हमने कैलकुलेट किया, रनिंग किस में, रनिंग फ्री में कैलकुलेट किया था, वो 0.5 आया था। तो वहाँ से हमने बी सी की वैल्यू निकाली। अब इस बी सी की वैल्यू को सब्स्टिट्यूट कर दो हेड लॉस में, ठीक है। हेड लॉस में यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दो, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, ये वैल्यू आ जाएगी हेड लॉस की। लगा दो अब बर्नौलीज इक्वेशन अगेन, किस पे लगानी है, फ्री सरफेस पे और सेक्शन 1 1 पे। तो फ्री सरफेस पे ये आ जाएगी, और ये सेक्शन 1 1 पे हेड लॉस हम कंसिडर करते हैं। तो डाटम कहाँ लेना है, डाटम अब पिछले केस में भी हमने लिया था कि माउथ पीस का जो सेंटर होगा वहाँ से हम डाटम लेंगे, उसकी हाइट जो होगी ऊपर तक वो एच होगी, ठीक है। तो वहाँ से कंडीशन सिमिलरली जैसे हमने लास्ट टाइम डिटरमाइन की थी कि वेलोसिटी इनसाइड द टैंक 0 होती है, उसके बाद डाटम का डिस्टेंस कितना होगा फ्री सरफेस से, फ्री सरफेस का डिस्टेंस डाटम से कितना होगा, सेक्शन 1 का डिस्टेंस डाटम से कितना होगा, वो सारी चीज़ें डिटरमाइन करके जैसे लास्ट केस में किया था, कुछ भी अलग नहीं है, सारा सेम है, बस अगेन डिटरमाइन किया हमने उसको, यहाँ पे वैल्यूज पुट की। तो फाइनली जो हमें इक्वेशन मिलेगी वैल्यूज पुट करके, वो मिल जाएगी हमें v1 की ये वैल्यू एट सेक्शन 1 1 पे हमें वेलोसिटी मिल जाएगी। पर ये एक्चुअल वेलोसिटी है, थ्योरेटिकल वेलोसिटी हमारे पास अंडर रूट जी एच होती है। तो कोफिशिएंट ऑफ वेलोसिटी किसके इक्वल हो जाएगी, एक्चुअल वेलोसिटी अपॉन थ्योरेटिकल वेलोसिटी। तो वहाँ से हमारे पास क्या आ जाएगा, कोफिशिएंट ऑफ वेलोसिटी दैट इज सी वी। अब वे कंसीडरिंग सी सी इज इक्वल टू 1 हियर, वाई बिकॉज एरिया ऑफ जेट एट आउटलेट इज इक्वल टू द एरिया ऑफ द मोनोफिस। क्योंकि मैंने क्या बताया, कंट्रैक्शन होने के बाद वो पाइप की शेप ले लेती है, तो इसलिए जितना आउटलेट पे जो वेलोसिटी होगी, ठीक है, आई मीन आउटलेट पे जितना एरिया होगा उतना ही एरिया किसका होगा, माउथ पीस का भी उतना ही एरिया है। तो इस केस में हम इसलिए इसको 1 ले रहे हैं। तो सी डी किसके इक्वल होता है, सी सी इंटू सी सी, सी डी सी बी इंटू सी सी। तो वैल्यूज पुट करेंगे तो यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा 0.707। तो डिस्चार्ज अब सिंपली आप निकाल सकते हो रेल रूट्स के लिए, कैसे निकलेगा, सी डी इंटू डिस्चार्ज कैसे निकलेगा, सी डी इंटू एरिया इंटू किसके इक्वल होगा, एरिया इंटू थ्योरेटिकल वेलोसिटी विच इज अंडर रूट 2 जी एंड एच, ठीक है। तो सी डी की वैल्यू निकाल ली 0.707, तो यहाँ से हमारे पास वैल्यू निकल जाएगी, ठीक है। तो फाइनली हमें क्या मिल जाएगा, फाइनली हमारे पास वैल्यू आ जाएगी 0.7707 ए इंटू अंडर रूट 2 जी एच। तो यहाँ पे हमारे ऑरिफिसेस और नॉचेस ये माउथ पीसेस कंप्लीट होते हैं। नेक्स्ट टाइम हम पढ़ेंगे नॉचेस एंड वेयर्स, ठीक है। और उसके बाद डिफरेंस देखेंगे इन दोनों का, नॉचेस वेयर्स का डिफरेंस क्या होता है और ऑरिफिस और माउथ पीसेस का डिफरेंस क्या होता है। ये तो अभी तक आपको पता लग गया होगा डिफरेंस क्या होता है, क्योंकि अब काफ़ी डिस्कस कर लिया अलग अलग टाइप्स, सारी हमने की नहीं क्लासिफिकेशन की सभी टाइप्स, क्योंकि जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, जो पेपर्स में आती हैं, वही हमने यहाँ पे डिस्कस की है, ठीक है। ओके देन, लास्ट नेक्स्ट टाइम फिर हम करेंगे नॉचेस एंड वेयर। ओके, थैंक यू।